how to get a job in Canada without Canadian experience. So it's not luck, it's a mindset. Today we are not going to discuss about the basic requirement, the LinkedIn, resume, cover letter, and technical skills and all other things. You have lots of Instagram video on my page, but today we are going to discuss about the mindset. How does the mindset is impacting your overall journey? What are the real problem? This video is specifically for those people who are looking for a job in Canada without Canadian experience. You want to get entry, you want to get entry into the bank, or probably you want to get entry into the field, any field, engineering, finance, construction, IT, tech, any field. You want to get a job or you want to grow in Canada. So probably you have a basic job and you want to make 100k. So this video is for you. So the first thing which I would like to talk about, the confidence. You might have first questions in your mind that can I get a job, or I cannot do it, or it's like a self-doubt going on in your mind. The confidence you will easily able to get. The one thing I would like to tell, जॉब हंटिंग ये कुछ बड़ी बात नहीं है. सब लोग करते हैं मार्केट में. मतलब शायद 70-80% स्टेटिस्टिकली मे बी मोर लोग, ज़्यादा लोग जॉब करते हैं मार्केट में. सब लोग को एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, सब लोग को बिजनेस नहीं करना है. तो जो जॉब आप ढूंढ रहे हो इन दिस लैंड ऑफ इमिग्रेंट, वो सब लोग करते हैं. सो एक चीज़ दिमाग में से निकाल दो कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ. सेल्फ डाउट निकाल दो. वेरिफिकेशन के लिए मुझे नहीं सुनना, एक सिंपल चीज करना है. लिंक्डइन पे जाओ. लिंक्डइन पे जो टाइटल, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, बैंकिंग एडवाइजर बनना है, जो टाइटल आपको पसंद है वो टाइटल लिंक्डइन में डालो. एंड देन आपकी सरनेम डालो, खुद की सरनेम. जैसे मेरी सरनेम पटेल है, पटेल शर्मा जैन. मैं मेरी ये वीडियो बहुत बार मैंने बनाया है, बहुत बार मेरे रील्स में भी बोला है. ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस देगा आपको जब आप देखते हो कि पटेल सरनेम से लॉट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज वर्किंग इन बैंक्स. लेट्स से सीआईबीसी में जॉब चाहिए, सीआईबीसी डालो, देन सरनेम डालो शर्मा. You will get lots of candidates who are working in CIBC right now and coming from your community. ऐसे इंडिया की सारी कॉमन सरनेम उठा लो, या आपकी बैक होम की सारी, यू पिकअप एनी कॉमन सरनेम फ्रॉम योर बैक होम कंट्री एंड देन यू जस्ट चूज इट. So this is first verifications that in Canada, immigrants get a very good field job and they are respected in so many different industries. So the self-doubt what you have in mind right now, that can I get a job? This is the problem. They are not giving me the reference. They are not giving me the fair chance. No, everyone got an offer. They are working in the field right now. Now once you get a confidence, तो आपको ये करना है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आप नहीं कर रहे हो, उससे आपको जॉब नहीं मिल रही है. सो चलो कॉन्फिडेंस मिल गया. दूसरा क्वेश्चन अगर दिमाग में होगा कि कैन आई गेट अ जॉब विदाउट कैनेडियन एक्सपीरियंस. सो कैनेडा एक्सपीरियंस का बैरियर बहुत है. 2026 में वैसे भी एंटायर गवर्नमेंट ने तो उसको निकाल ही दिया है, बट that you will probably face during the interview, that we are looking for someone with more experience, Canadian experience, local experience or something like that. ऐसा आपने सुना होगा. सबसे पहली बात, जब आपने ये चीज़ सुना है, मतलब आपको इंटरव्यू आया है, मतलब उसने आपका रेज्यूमे देखा था, तब आपको कॉल किया है. और उसको जब रेज्यूमे देखने के बाद एचआर को पता है कि इस बंदे के बाद कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, इट मीन्स दे लाइक्ड योर प्रोफाइल, दे कॉल्ड यू. You couldn't convince them that you can do that job. You couldn't convince them that you have enough skills, enough knowledge to do the work. You couldn't convince them that you are better than other candidates available in the market. So ये कैनेडियन एक्सपीरियंस का जो मिथ है वो दिमाग से निकाल दो. आई विल गिव अ वेरी गुड जस्टिफिकेशन. फर्स्ट थिंग, वो लोग बिना सीरियस रिक्वायरमेंट्स के अलावा आपको कॉल नहीं करेंगे. मतलब आपकी प्रोफाइल पसंद आई है तभी जाके कॉल किया, और उनको पता भी है कि तुम्हारे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है. दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यूजुअली कहाँ हमारे इमिग्रेंट्स को फील्ड जॉब इजीली मिलती है, या दे आर रिस्पेक्टेड, और द फील्ड जॉब एंट्री लेवल की मिलती है. वो जो जहाँ इमिग्रेंट्स रिस्पेक्टेड है, यूजुअली वो एंट्री लेवल पोजीशंस की सैलरी होगी इधर 45K to 55K. समटाइम्स अगर मान लो कि इंश्योरेंस एडवाइजर का टारगेट ले लो, बहुत सारी बैंक्स इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए हायर करती है. कितना पे देती है? $18, $20, $22. Same chीज, so many call centers, so many technical jobs, so many jobs, even the banking officers or banking advisor की फर्स्ट सैलरी कितनी होती है? 47K, sometimes 50K. So क्या आपको लगता है कि if they are looking for Canadian experience, 2 years experience, 3 year experience, कोई 47K 50K पे काम करेगा?
वेरी रेयर चांसेस दैट मे बी बिकॉज ऑफ कंपल्सन कोई काम करता है तो अलग बात है, बट अगर किसी के पास बैंक का ओरिजिनल कनाडा का एक्सपीरियंस है और 2-3 साल वो बैंक में काम कर रहा है एंड दे आर पोस्टिंग द पोजीशंस एज अ बैंकिंग एडवाइजर, और वो भी कोई ऑड लोकेशंस पे जहाँ कोई जाने के लिए रेडी नहीं है, वहाँ वो लोग 47K पे हायर करने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जब सैलरी बैंड कम है, जब लोकेशन थोड़ा ऑड है और पोजीशंस की रिक्वायरमेंट में उनके कुछ क्राइटेरियाज है, मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वो अचीव होते हैं, सो दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज द कैनेडियन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। सो जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है या कोई भी बोलता है, तो एक चीज दिमाग में डाल दो, आइदर यू आर ट्राइंग समथिंग which is beyond your capacity or you are not eligible, maybe you want to be manager or you want to be something which probably it's like not a practice in the market, or you are not trusting yourself. Because simple entry level job, if you check my website as well, lots of offers we have received: financial advisor, financial service representative, sales engineer, quotation specialist, estimator, project coordinator. uh, there are lots of efforts in production coordinator, production planner, and even in IT, tech sales representative, business analyst, data analyst. Simple entry level job. When they want to hire someone for those entry level job, and if they want to pay 18, 20, $22, 50, 55K till 60K, it means they have to expect the immigrants in that title. So the second question is, what do you have in mind? Can I get a job without Canadian experience? Yes, you can get a job without Canadian experience. Now the third point, the reference. बहुत बार मैंने सुना है कि reference. When I was even working on different jobs, I was getting messages on the LinkedIn. Immediately request accept करने के बाद दूसरा मैसेज आ जाता है, कैन यू गिव मी द रेफरेंस इन योर कंपनी। भाई 2 सेकंड के पहले मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम दुनिया में एग्जिस्ट करते हो कि नहीं करते हो। मुझे ना तुम्हारी कोई हिस्ट्री पता है, मुझे ना तुम्हारी कोई ओवरऑल बैकग्राउंड पता है, ना तुम्हें मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस जो तुमने लिंक्डइन पे डाला है वो जेन्युइन है कि नहीं है। कैसे मैं रेफरेंस दे दूँ? क्योंकि रेफरेंस देना एक बड़ी बात है। बड़ी बात मतलब अगर मैं मेरे मैनेजर को जाके बोलूंगा कि आई हैव अ फ्रेंड लिंक्डइन कनेक्शंस और आई नो समवन हु इज एलिजिबल फॉर दिस पोजीशंस, कैन यू कंसीडर हिज प्रोफाइल, ही और शी विल ट्रस्ट मी, he or she will consider that okay, you are coming, then probably your profile is very good. If you are trusting that guy, then we should call for an interview, and there are high chances वो ऑफर निकल जाएगी अगर सब कुछ सही हुआ तो। बट आपको क्या लगता है कि कोई अननोन लिंक्डइन पे जाके आप रेफरेंस की भीख मांगोगे वो दे देगा? रेफरेंस क्या चीज़ है कि मैंने उसके साथ काम किया है, मैं उसके साथ काम किया है, आई नो हिज स्किल्स, आई नो हिज एक्सपीरियंस, एंड विच इज मैचिंग दी कंपनीज रिक्वायरमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसा कर सकता है कि भाई दिस इज अ लिंक्डइन कनेक्शन, आई लाइक द प्रोफाइल एंड आई कैन रिफर बिकॉज हमको कोई मिल नहीं रहा है। बट यूजुअली जब कोई अननोन है, कोई अपने आप की प्रोफाइल को रिस्क में नहीं डालेगा। क्यों? अगर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ तो मतलब मैं आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई करके बोल रहा हूँ। अगर आपने कुछ ब्लंडर किया है और जो कंपनी कुछ पकड़ती है फ्यूचर में, तो वो मेरे पे आएगा। ज्वाइन करने के बाद अगर आपके परफॉर्मेंस में कुछ इश्यू हुआ तो वो मेरे पे आएगा। तो मतलब फैमिली से रेफरेंस एक्सपेक्ट करना या किसी अननोन से रेफरेंस एक्सपेक्ट करना, विच इज अ रॉन्ग थिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। इवन एट इन्फोसिस, वेरी सिंपल। अब इन्फोसिस के वेबसाइट पे जाओ, सक्सेस स्टोरी पे देखो, लॉट्स ऑफ कैंडिडेट गॉट एन ऑफर इन डिफरेंट फील्ड। व्हाई आई एम आस्किंग दिस? उसमें से किसी को भी जाके पूछो कि भाई तुमने ये जॉब रेफरेंस से लिया या अपने दम पे लिया, you will get the answers कि अपने दम पे लिया। So if you are looking for a reference from unknowns whom you even don't know, and if you are watching some videos available in the market regarding get a reference, chase people, do the networking and seek for the reference, that's a wrong suggestions from my side. No one will give you the reference. Yeah, there are high chances that if you do a good coffee chat, if you connect with them, if you are connected with for a long term, you are seeking for information, guidance, and then probably they see a genuinity in you, they have verified your skills, then probably there are chances they will consider. Then it's a long cultivations. It's a long cultivation. It's not going to happen on the worst connections. आपको सीरियसली नॉलेज लेना है, आपको सीरियसली उसके साथ से पूछना है कि भाई तेरा रूटीन क्या है, डे लाइफ क्या है, तब जाके वो कन्वर्ट होगा वो नेटवर्किंग फ्रॉम द रेफरेंस टू द रेफरेंस। सो don't focus on the reference, focus on yourself, get the skills, you will easily able to get a job. Now the another thing is about the positivity during the job hunting process. How can I be positive?
the most important problem that you have a self-doubt, you have financial problems going on, and you have lots of ifs and buts, the external factors, the overall different surroundings in the market, which is probably creating a negativity in you. So the most important thing, I have a very detailed video about the surrounding. Quickly I will tell, surrounding को बदल दो. आपके आसपास के जो भी लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, the closest people to you, it is very well told that you are average of 5 people around you, which includes your housemate, roommate, your girlfriend, spouse, or probably your mother, father, or someone whom you know very personally, or maybe you are very well influenced by any celebrity or any bloggers. अगर आप उसको फॉलो करते हो, वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव हो. नेगेटिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सबको नेगेटिविटी सुनने में पसंद है. अगर आज मैं आपको आके बोलूँगा कि यार मार्केट बहुत गंदा है यार, ऑफर ही नहीं निकलती, बहुत स्लो है, रिसेशन है और बाकी ये रेसिज्म भी है, लाइक लोग अपने लोगों को तो चांस ही नहीं देते, दे आर ऑलवेज गिविंग दी चांस टू दी लोकल पीपल. आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, मुझे भी किसी ने चांस नहीं दिया, एक इंटरव्यू आया उसने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया. नहीं, इट्स नॉट अबाउट दी चांस, इट्स नॉट अबाउट द फेयरनेस, इट्स नॉट अबाउट द रेसिज्म, इट्स नॉट अबाउट द मार्केट. It's about you like to listen those things which is easy comfort. Change those surrounding. अगर वो कोई भी ब्लॉगर है जो नेगेटिविटी फैलाता है for his views, it is his business to do, let him do, but you change it. You follow those people who are positive. You try to connect with those people who are successful in the market, who try to talk with those people who are doing the same job like you. They will never tell you. Means you go to my website or you go to the LinkedIn, the way I said in the beginning, you talk with them and ask the questions that can I get a job, the same job which you are doing? They will never say no, you cannot get a job. They will say yes, you can get a job, you should do like this, like this, like this. So it's about the job hunting process में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप के सराउंडिंग जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रखो. कोई भी जो नेगेटिव बात कहता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि उसको डिस्कनेक्ट हो जाओ, यू ट्राई टू रिड्यूस द कनेक्शंस, यू ट्राई टू फोकस ऑन द मोर पॉजिटिव पीपल. ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका सराउंडिंग बढ़ जाएगा. The last topic of this video is basically how to prioritize the job hunting or how to decide the priorities. अभी I understand that कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चलता है, क्या करना है, जॉब भी करनी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इंडिया का प्रॉब्लम, फैमिली को भी मैनेज करना है. देर आर चांसेस दैट यू आर डूइंग 40 आवर्स जॉब एंड यू वांट टू हंट अ बेटर जॉब, PR देना, IELTS देना, वैस करवाना, बहुत कुछ चल रहा है. To define a priority, very simple thing I will tell. आपको पता होना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में. यू आर द पर्सन हु डिसाइड द प्रायोरिटी, और वो डिसीजंस खुद लेते हो, फिर किसी को ब्लेम मत करना. अभी सिंपल आइटम यू हैव टू डू, लिस्ट डाउन द रिक्वायरमेंट्स कि मुझे PR करना है. PR करने के लिए मेरे कितनी वर्क परमिट है, वर्क परमिट के पहले मुझे अप्लाई करना है, अप्लाई के मेरे पास इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इतना एक्सपीरियंस के लिए मुझे इतने पहले जॉब चाहिए, इसके पहले जॉब के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए, और मेरे पास मुझे IELTS भी देना है, मुझे वेस्ट भी करना है, मुझे ये सब भी करना है. लिस्ट डाउन दोज थिंग्स, बैक कैलकुलेशंस करो एंड देन प्लान एवरीथिंग. ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज यार मुझे अभी ये सब कुछ स्टार्ट कर देना पड़ेगा, मुझे ये सब क्लियर कर देना पड़ेगा. बिफोर ग्रेजुएशन का पूरा दिमाग चलने लगेगा. अभी प्रायोरिटी के लिए एक मैं बहुत मस्त एग्जाम्पल देता हूँ. इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी, रियल वन. मेरा एक क्लाइंट था. यूजुअली बैंक्स में हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर्स है, बहुत सारे कंपनी कैंडिडेट्स को हमने बैंक्स में जॉब लगाया. एक पर्टिकुलर बैंक में हमारी 10 से ज़्यादा ऑफर है, सिर्फ लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं. तो हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग डेटा है, फॉर दैट द ओवरऑल प्रोसेस पता है कि कैसे असेसमेंट होगा, कैसे इंटरव्यू आएगा, ATS कैसे क्लियर करना है, कैसे ओवरऑल क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे स्क्रीनिंग में, सेकंड राउंड क्या है, फाइनल राउंड कैसा है, अगर कोई एडिशनल डिटेल्स मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, सब कुछ पता है. और पूरा रिसोर्सेज है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, डॉक्यूमेंट्स, ओवरऑल वीडियोस, मल्टीपल मॉक राउंड्स एंड सो मेनी थिंग्स. अभी उसमें मैं बहुत क्लियरली मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भाई इसमें से रिजेक्ट होना मतलब बहुत घटिया चीज़ हो गई कि तुमको सारे ही, मतलब पेपर पूरा फूट चुका है, गुजराती में बोले तो पेपर तुम्हें पता है कि क्या है, एंड इवन दो इफ़ यू आर गेटिंग फेल्ड मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर इट. मतलब इस चीज़ को लाइटली मत लेना.
अभी एक रीसेंट केस में ऐसा हुआ कि एक बंदे ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू आने के बाद मैंने पूरा जो अपनी प्रोसेस के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स लिया, मैंने उसको पूरा डिटेल कस्टम डिटेल भेजा, मैंने उसको सारा रिकॉर्डिंग्स और वो सब भेजा। एंड देन मैंने बोला कि भाई इसके लिए तुम्हें अराउंड 6 घंटे चाहिए, पूरा समझ लो, ये तुम्हें पहले करना था पर तुमने नहीं किया है, कोई बात नहीं, अभी इंटरव्यू आ गया, मतलब सामने इंटरव्यू खड़ा है, अगर मैंने ये मेहनत अच्छे से कर लिया तो ऑफर आ जाएगा। तो मैंने बोला सब कुछ डिटेल्स रेडी है, अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी चीज़ को लाइटली मत लेना, जो भी मेरे ईमेल में से आया है वो जेन्यून कंटेंट है और वो ऐसे रैंडमली नहीं भेजा है मैंने। तो बोलता है सर वो मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ देख पाऊंगा, आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर, मेरी आज जॉब है, मैं अभी जॉब के लिए निकल रहा हूँ, एंड देन प्रॉब्ली आई विल गेट फ्री मे बी अराउंड 11 एंड देन कल 9 बजे तो इंटरव्यू। मैंने बोला इफ आई वर यू आई वुड ड्रॉप दिस जॉब फॉर टुडे एटलीस्ट, आई विल टॉक विथ माई एम्प्लॉयर और आई विल अरेंज सम रिप्लेसमेंट और समथिंग। बोले सर नहीं होगा, आई विल मैनेज, डोंट वरी सर, मैं देख लूँगा ये सब। फिर मुझे पता था कि ये देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और इसमें से ये बंदा गया, होना नहीं है इसमें से, मुझे पता था। बट आई जस्ट सेड मोटिवेटेड, ओके चल तुम्हारे पास टाइम नहीं तो इतना कुछ खास देख लेना और बाकी टाइम मिले तो ये सब देखना। वो सब हुआ, उसने इंटरव्यू फेस किया, 2 वीक के बाद वो रिजेक्ट हुआ। वॉज एक्सपेक्टेड, अल्टीमेटली उसको दूसरी कंपनी में से ऑफर मिल गई, बट दिस वॉज एक्सपेक्टेड। अभी जब वो रिजेक्ट हुआ तब मैंने सिंपल चीज़ बताया, हमारी प्रैक्टिस है कि हम इंटरव्यू के रिजेक्शन में से सीखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती किया एंड ऑल अदर थिंग्स, एंड देन वी लिस्ट डाउन द क्वेश्चंस विच फेस एंड हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब है। मैंने उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोला और मैंने बोला कि तुम खुद ही देखो कि मैंने जो भेजा था वो क्वेश्चंस रिपीट हुए कि नहीं हुए, हमने जो सैंपल आंसर्स दिए थे उससे तुम्हारे आंसर्स मैच होते कि नहीं होते, तुमने कैसे डिलीवर किया। वो सब एनालिसिस के बाद उसको इतना गिल्टी फील हुआ, लिटरली ही वाज लाइक ऑलमोस्ट क्राइंग कि सर आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी, कि अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि यूजुअली कंपनीज में होता है, स्पेशली द बैंक्स और मोस्टली कंपनीज में होता है कि वंस यू गॉट रिजेक्टेड दे विल कीप योर डेटा फॉर नेक्स्ट 6 months और मे बी 1 year एंड देन दे विल नॉट कंसिडर यू फॉर प्रॉब्ली नेक्स्ट 3 years और मे बी नेक्स्ट 6 months डिपेंडिंग ऑन द कंपनी पॉलिसी। उसको इतना गिल्टी फील हुआ कि सर इसमें इतना कुछ था, सब कुछ रेडी करके गया होता तो मुझे ऑफर मिल जाती है नॉट। सो प्रायोरिटी, नाउ इट्स लाइक यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ क्लैरिफाई हुआ होगा कि कैसे फाइनेंस मैनेज करना, कैसे टाइम मैनेज करना, कैसे कॉन्फिडेंस लेना, कैसे नेटवर्किंग करना, सब कुछ पता चल गया ये वीडियो में। मोटिवेशन आ जाता है आज की, आज मैं बहुत कुछ कर लूँगा, और वो मोटिवेशन के बाद फिर जब कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं दिया, एंड देन प्रॉब्ली 2 दिन दिया एंड देन सडनली स्टॉप, ऐसे जॉब नहीं मिलने वाली सर। Priority you have to decide today. Priority is your job hunting. You have to do the proper calculations that what is topmost priority which I should focus today. Is it a job hunting? Is it doing West? Is it doing survival job? Is it doing something else? Is it doing socializing? Is it doing Instagram or is it doing something else? Okay. So you decide which is the most important priority for you. Now ये सारी वीडियो देखने के बाद I'm pretty sure that you will feel little confident, you will feel little bit motivated. Usually मैं ये बोलूँगा कि ये मोटिवेशंस, ये जो जुस्सा है वो एंड तक रखना जब तक ऑफ़र नहीं मिल जाती, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट एन ऑफ़र, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जैसे मैंने बोला, स्टार्ट विथ समथिंग, इन्वेस्ट 2 hours इन योर लाइफ, गिव कमिटमेंट टू योर सेल्फ, लिस्ट डाउन दोज थिंग्स इन योर लाइफ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जॉब हंटिंग के लिए मुझे इतना कुछ करना है, मेरे पूरे लाइफ में PR के लिए इतना कुछ करना है, मेरा ये रोड मैप है नेक्स्ट 3 साल का, मुझे ये सेटअप करना है, ये मेरे बेंचमार्क है, इतने इतने टाइम में मैं ख़त्म कर दूँगा। ऑटोमेटिकली सब कुछ, डेट होगा, टाइम होगा, सामने होगा, यू विल स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जब कुछ चीज़ पेपर पे लाते हो, डॉक्यूमेंट करते हो, ऑटोमेटिकली पता चलता है यार मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि ये पेस से, ये एटीट्यूड से मैं PR होऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह से 100 की जॉब लूँगा। सो वो सारा जो ड्रीमी चीज़ें जब डॉक्यूमेंट करते हो वो रियलिस्टिक पे आ जाता है, देन यू विल स्टार्ट डूइंग द रोड मैप। सो इफ़ यू फील ये वीडियो से कॉन्फिडेंस आया, you wanna start from somewhere, you can book the free resume review call if you want to, or if you have already attended, awesome। वो कॉल में बेनिफिट ये होगा कि रेज्यूम पे फीडबैक मिल जाएगा, आपको रोड मैप भी मिल जाएगा कि कैसे जॉब लेना है, कहाँ कौन सी पोजीशन टारगेट करनी है, और देन प्रॉब्ली विल गेट सम मोटिवेशन फ्रॉम दैट अनदर कॉल एज वेल, एंड उसमें आप मेरे से डायरेक्ट डिस्कस करोगे, सो वो आपको बेनिफिट है, यू कैन बुक दैट।
नाउ फॉर एग्जाम्पल वो रेज्यूम का छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि यस इट वॉज अ मोटिवेटेड वीडियो, इट वॉज समथिंग विच हेल्प यू, मैंने ये वीडियो ना व्यू ना लाइक ना शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाया, मैंने ये वीडियो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए बनाया है कि आई वॉज ऑल्सो इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइक यू, मैं वही पर्पस से आया था यहाँ कनाडा में टू ग्रो, and you came with the same purpose to bring your parents to buy a good luxury car and to earn more money and to probably to spend more money, travel the world and all, सारे सपने होते हैं अपने लोग के, बराबर? तो वो लेके आप आए हो, वो अचीव करना है। सो इफ़ यू फील इट वॉज गुड, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, इससे शायद आपको कुछ बेनिफिट हुआ, आई वुड लाइक टू फील समवंस हैप्पीनेस। इफ़ यू फील यू कैन कमेंट कि ये पार्ट बहुत अच्छा था आपके लिए, इट हेल्प अ लॉट, इट जस्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या सपोर्ट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, विच विल हेल्प मी टू मेक अ बेटर वीडियोस, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर एंड आई एम नॉट समथिंग strong in this making this kind of video, so which will give me some idea what exactly you are looking for, or probably on what kind of topics you want to make videos and all. So that's why I'm just requesting, if you want to comment or you want to email, in the descriptions you will have my email ID and all. I wish you all the best. You came here with a motive, you came here with a purpose. Achieve that purpose. Don't settle for less. It is doable if all those people who have seen on the LinkedIn when I did in the beginning of this video, if those people can achieve, you can also achieve. If I can achieve, being coming from middle class family, being an international student, definitely you can achieve.